નમસ્કાર મિત્રો, હું ઋષિ પાઠક નેચર ક્લબ સુરત કો એક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથન અને વાઇલ્ડલાઇફ એન્ડ નેચર વેલફેર ટ્રસ્ટ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, જેમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે છેલ્લા 15-16 દિવસથી આપણે આ વાઇલ્ડલાઇફ વેબિનારની આખી સિરીઝ ચલાવી રહ્યા છીએ. તેનો આજે 16મો દિવસ આવી ગયો છે. આપણને ખબર ના પડી કે કઈ રીતે 16 દિવસ ગુજરી ગયા અને અલગ અલગ વિષયો પર અલગ અલગ તજજ્ઞો સાથે આપણે અવનવી માહિતી જાણતા રહ્યા. તો આજે આપણી સાથે એવી જ રીતે બીએનએચએસના ડોક્ટર ભાવિક પટેલ જોડાયા છે, જે આપણને માઇગ્રેશન વિશે ખૂબ રસપ્રદ માહિતી આપશે. માઇગ્રેશન એટલે ખાલી પક્ષીનું માઇગ્રેશન નહીં, પણ બીજા અલગ અલગ જાનવરોનું, માણસોનું માઇગ્રેશન છે, શા માટે થાય છે, શેના લીધે થાય છે, તેના વિશે આપણને અવનવી માહિતી આપશે. તો એમનું વધુ સમય ના બગાડતા ડોક્ટર ભાવિકને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એનું સેશન સ્ટાર્ટ કરે. નમસ્તે મિત્રો, ગુડ ઇવનિંગ. મારું નામ ડૉક્ટર ભાવિક છે અને બેસિકલી મેં પીએચડી કર્યું છે મેંગ્રુવ ઇકોસિસ્ટમમાં અને હું બીએનએચએસ બોમ્બે નેચરલ સોસાયટી તરફ જોડે જોડાયેલો છું. અને અમારા બહુ બધી જોબ પ્રોફાઇલ હોય છે, એમાંથી એક જોબ પ્રોફાઇલ છે કે માઇગ્રેશન પર કામ કરવું. એટલે મને થયું કે મને તો જે થોડું નોલેજ છે માઇગ્રેશન પર એ આપની જોડે શેર કરું. હવે આ જે નોલેજ આજે હું શેર કરી રહ્યો છું એ તમને એવું લાગે કે ના આમાં કંઈ આ વસ્તુ નથી બરોબર, તો તમે મને કહી શકો છો કોમેન્ટમાં. એનો વાંધો નથી કશું જ, આપણે આ 2 વે કમ્યુનિકેશન રાખીશું. અને મારા પ્રેઝન્ટેશન છે એનું નામ હું રાખું છું કાયમ એબીસીડી ઓફ માઇગ્રેશન. એટલે એબીસીડી એટલે આપણે નેચર સામે આપણે જોવા જઈએ તો આપણે બહુ નાના વ્યક્તિઓ છે, બહુ નાના સજીવો છે. એટલે આપણે કાયમ કશી વસ્તુની શરૂઆત આપણે એબીસીડી થી જ કરીએ છીએ. સ્કૂલમાં પણ આપણે એબીસીડી ભણીએ છીએ. એવી રીતે આ હું નાનું તમને પ્રેઝન્ટેશન આપું છું એબીસીડી, એટલે તમારા મનમાં એવું એક સ્પાર્ક લાગે કે ભાઈ ના, મારે માઇગ્રેશન પર વધારે જાણવું છે, તો તમે ચોક્કસ ગૂગલ બાબાનો સહારો લઈ અને આની પર વધારે રિસર્ચ કરી શકો છો. હવે આપણે ચાલુ કરીએ એ પહેલા હું તમને મારી સંસ્થાનું એક બેકગ્રાઉન્ડ આપી દઉં. હું આવું છું બોમ્બે નેચરલ સોસાયટી અને અમારી સંસ્થા 1883માં 1883માં 15 સપ્ટેમ્બરે 6 ઇંગ્લિશમેન એટલે 6 અંગ્રેજ લોકો અને 2 ઇન્ડિયન લોકોએ ચાલુ કરી હતી. હવે ચાલુ કેવી રીતે થઈ હતી એનું એક રસપ્રદ વાક્યો છે, કિસ્સો છે કે જ્યારે તમને ખબર હોય કે બ્રિટિશ રાજમાં લોકો શિકાર બહુ કરતા હતા, તો એ લોકો પણ જ્યારે શિકાર કરવા જાય ત્યારે લોકો ટ્રોફી કલેક્ટ કરીને આવતા હતા. અને એ જે આ છે 6 ઇંગ્લિશમેન ને 2 ઇન્ડિયન્સ, એમને એવું નક્કી કર્યું કે ચલો આપણે એક જગ્યાએ દર રવિવારે ભેગા મળીએ, વન્સ ઇન અ મંથ ઓર વન્સ ઇન અ 2 મંથ, અને આપણો જે અનુભવ છે, આપણી જે ટ્રોફીઝ છે, આપણા જે સ્પેસિમેન્સ છે, એકબીજા જોડે શેર કરીએ. અને એવી રીતે કરતા કરતા આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. અને અત્યારે અમારો સાયન્ટિફિક સ્ટાફ લગભગ 200+ જેવો છે, ઓલ ઓફ સાયન્ટિફિક ને એડમિન સ્ટાફ કરીને. અને અમારા સંસ્થાની એક સારી વાત છે કે અમારી સંસ્થાના જે પણ ફિલ્ડ સ્ટેશન છે એ તમને લેહથી લઈને લક્ષદ્વીપ સુધી જોવા મળશે. દરેક રાજ્યમાં તો હું ના કહી શકું, પણ અમુક અમુક રાજ્યોમાં અમારા ફિલ્ડ સ્ટેશનો તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા છે જ. અને અમારું જે લોગો છે એ એક હોર્નબિલ છે, ગ્રેટ ઇન્ડિયન પાઇડ હોર્નબિલ વાળું જે છે એ છે અમારું લોગો. અને એ અમારા સંસ્થામાં જ હતું, ત્યાં ઘણા વર્ષો સુધી રહ્યું. અને જ્યારે એ ડેડ થયું ત્યારે અમે લોકો એને અમારા લોગો તરીકે અપનાવી લીધું. અને ત્યારથી અમને લોકો એવું કહે છે કે ના, તમે બર્ડ્સ માટે પણ કામ વધારે કરો છો. અને આ ઓળખાણ અમને વધારે આપી ડૉક્ટર સલીમ અલીએ. તમે જોઈ શકો છો કે સલીમ અલીનું કાર્ટૂન જેવું મેં મૂક્યું છે, અને એમને પહેલી બુક લખી હતી બર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા કરીને, અને એનું હમણાં અમે લોકોએ ગુજરાતી એડિશન બહાર પાડ્યું છે, ભારતના પક્ષીઓ. એટલે આ ડૉક્ટર સલીમ અલીને કારણે લીધે અમારી સંસ્થા આખા વિશ્વમાં બર્ડ્સ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત થઈ છે. અને અમારા બહુ બધા પ્રોગ્રામ્સ છે બર્ડ્સને રિલેટેડ, જેવું કે ઇમ્પોર્ટન્ટ બર્ડ એરિયા નેટવર્ક IBA, એનું અમે આખું એક મોટી પુસ્તક બહાર પાડી છે. એ સિવાય અમે ગીધ બચાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે, કે જે અમારું પિંજોર છે, અને બીજા બધા જે આસામમાં 1-2 જગ્યાએ સેન્ટર છે અમારા ગીધના, એનું પ્રજનન કરાવીને અમે લોકો એવા સ્ટેજમાં પહોંચ્યા છે કે જેથી અમે લોકો એ ગીધને નેચરલ એન્વાયરમેન્ટમાં રિલીઝ કરી શકીએ. એ સિવાય અમારી સંસ્થા એક બર્ડ એટલાસ નામ કરીને એક બુક બહાર પાડી છે. એકચ્યુઅલી અમારી સંસ્થા 1969થી વી આર ડુઈંગ ધ રિંગિંગ ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા. અને ત્યારથી અમારી પાસે જે પણ રિંગિંગના ડેટા છે એ અમે કમ્પાઇલ કરીને એક બર્ડ એટલાસ બહાર પાડ્યો છે અમે લોકોએ. એટલે આ અમારી સંસ્થાનું થોડું મેં તમને આપ્યું પરિચય. બધા લોકોને ખબર જ હશે, કારણ કે બહુ જાણીતી છે. હવે આપણે જોઈએ કે A ફોર માઇગ્રેશન. એટલે
એબીસીડીમાં જેમ એ પહેલો આવે એટલે આપણે પહેલું છે અબાઉટ માઇગ્રેશન. માઇગ્રેશન શું છે? તો તમે તમારી સ્ક્રીન પર જોઈ શકશો, એક મેપ છે અહીંયા મેં મૂક્યો છે. એમાં અમુક ડોટ્સ ઉપર જાય છે અને અમુક ડોટ્સ પાછા નીચે આવે છે. બાજુમાં એનું ઓગસ્ટ, મે, જૂન, જુલાઈ એવું બતાવ્યું છે. તો જે ઉપર છે બ્રીડિંગ ગ્રાઉન્ડ, એ તમારું નોર્ધન હેમિસ્ફિયરમાં છે. અને એ બ્રીડિંગ ગ્રાઉન્ડમાં જે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ હોય છે એ ત્યાં આગળ બ્રીડ કરે છે, ત્યાં બચ્ચાઓને જન્મ આપે છે. વન્સ એ બચ્ચાઓ ત્યાં જન્મ લઈ લે પછી એ લોકો, કારણ કે ત્યાંનું ટેમ્પરેચર ધીરે ધીરે ઓછું થવા લાગે છે, એટલે એ લોકો વિન્ટર માઇગ્રેશન ચાલુ કરે છે. એટલે હવે આમાં તમે એક્ઝામ્પલમાં જુઓ તો નોર્થ અમેરિકામાં એ લોકો બ્રીડિંગ કરે છે અને પછી જ્યાં સુધી ટેમ્પરેચર ઓછું થાય એટલે ગરમ રહેઠાણની તલાશમાં એ લોકો બ્રાઝિલ ને સાઉથ અમેરિકા સુધી આવે છે. એને આપણે કહીએ છીએ વિન્ટર માઇગ્રેશન. પછી સેમ જેવી રીતે બ્રાઝિલ ને બધી જગ્યાએ ઉનાળો શરૂ થાય એટલે એ લોકો પાછા પોતાની ઓરિજિનલ જગ્યાએ જતા રહે છે. એને સમર માઇગ્રેશન કહેવાય. એટલે આવી રીતે જે બર્ડની મુવમેન્ટ છે બ્રીડિંગ ગ્રાઉન્ડ થી લઈને વિન્ટરિંગ ગ્રાઉન્ડ સુધીનું, એને એ કન્ટિન્યુઅસ આખા વર્ષો ને વર્ષ ચાલ્યા જ કરે છે. આમાં એક વસ્તુ મેઇન જોવા જેવી છે કે એ લોકો જે બ્રીડિંગ ગ્રાઉન્ડ પરથી વિન્ટરિંગ ગ્રાઉન્ડમાં આવે છે તો ત્યાં રોકાઈ જતા નથી લાઈફ ટાઈમ માટે, એ લોકો પાછા જતા રહે છે. એટલે એ લોકો માઇગ્રેટ છે. આગળ હું તમને જણાવીશ કે ઇમિગ્રેશન શું છે, પણ અત્યારે માઇગ્રેટ એટલે જ છે કે તમે એક જગ્યાથી આવો અને ત્યાં જ પાછા જતા રહો. એને આપણે બેઝિક ગુજરાતીમાં માઇગ્રેશન કરી શકીએ. અને એવી રીતે તમે નીચે તમારે ગ્રાફ એક છે તમે જોઈ શકો કે એ લોકોએ અહીંયાથી ટેક ઓફ કર્યું, પછી થોડું એ લોકો ઉડ્યા, પછી પાછું એમને ખાવાની જરૂર પડી એટલે પાછું ત્યાં આગળ એમને રોકાણ કર્યું, પછી થોડું ઉડ્યા, પછી પાછું રોકાણ કર્યું, પાછું થોડું ઉડ્યા, પછી પાછું રોકાણ કર્યું. એવી રીતે ઉડાવતા એવી રીતે કરતા કરતા એના ફીડિંગ ગ્રાઉન્ડ પર સુધી આવે છે, વિન્ટરિંગ ગ્રાઉન્ડ સુધી. અને સેમ વસ્તુ એ લોકો એના બ્રીડિંગ ગ્રાઉન્ડમાં જવા માટે કરે છે. એટલે આ એક જાતનું એક માઇગ્રેશનનું પેટર્ન તમને દેખાય. હવે તમને લાગતું હશે કે માઇગ્રેશન એટલે નોર્મલી આપણે વિચારીએ કે માઇગ્રેશન બર્ડ્સ માઇગ્રેશન કરે છે. આપણે જ્યારથી પણ ઓક્ટોબરથી શરૂ થાય એટલે આપણા પેપરોમાં, ફેસબુકમાં, બધી જગ્યાથી ઓક્ટોબરથી લઈને એન્ડ ઓફ ધ ફેબ્રુઆરી બધી જગ્યાએ એક જ ન્યૂઝ હોય છે, યાયાવર પક્ષીઓ આવ્યા, અહીંયા આટલા યાયાવર પક્ષીઓ દેખાવ્યા, અહીંયા આટલા દેખાયું, અહીંયા આટલું દેખાયું. પણ એટલે આપણે એવું માનીએ છીએ ખાલી પક્ષીઓ જ માઇગ્રેશન કરે છે, પક્ષીઓ સ્થળાંતર કરે છે. ના, પક્ષીઓ નહીં, નાનામાં નાનું ઇન્સેક્ટ પણ સ્થળાંતર કરે છે. અને એનું એક મેઇન બહુ સરસ ઉદાહરણ છે મોનાર્ક બટરફ્લાય. જ્યારે મોનાર્ક બટરફ્લાય છે એ કેનેડામાંથી લઈ, કેનેડાની જે ફ્રિન્જીસ છે ત્યાંથી લઈ અને એ મેક્સિકો સુધી એનું વિન્ટર ગાળવા માટે આવે છે દર વર્ષે. એવી રીતે આખું એ પણ માઇગ્રેશન કરે છે. વિચાર કરો, એ તો કેટલું નાનું આટલું નાનું પક્ષી હોય છે બટરફ્લાય, એ આટલું માઇગ્રેટ કરે છે. અને એના કરતા પણ એકદમ હલકામાં હલકું છે સ્પોટ વિંગ ગ્લાઇડર. એક આપણું હેલિકોપ્ટર કે કહીએ છીએ વાણીઓ ગુજરાતીમાં, એ છે કે જે આપણા ઇન્ડિયાથી લઈને 11,000 માઇલની રાઉન્ડ ટ્રીપ કરે છે આફ્રિકાથી જઈને પાછું આવે. હવે તમે વિચાર કરો કે એટલો નાનો વાણીઓ, એટલું નાનો ડ્રેગન ફ્લાય એ ઓગસ્ટમાં તમે જુઓ તો એ ઓગસ્ટમાં આપણા ઇન્ડિયામાં હોય છે, પછી ઓક્ટોબરમાં એ માલદીવ્સમાં જાય છે, નવેમ્બરમાં તો એમને સિસ્લીસમાં એને એ લોકોને રિપોર્ટ કરેલું છે, અને ડિસેમ્બરમાં એમનું જે એમનું ટાર્ગેટ છે મોઝામ્બિક ત્યાં પહોંચે છે, અને ત્યાંથી પાછું એપ્રિલમાં એ લોકો પાછા આવે છે બ્રીડિંગ સાયકલ પતાવીને. એટલે એ પણ એક જાતનું માઇગ્રેશન જ કરે છે આખા એમાં. પછી છે ફિશનું માઇગ્રેશન. ઘણી બધી ફિશ છે. આપણે તમે ખબર હશે કે આપણા ગુજરાતના દરિયા કિનારે વેલ શાર્ક આવે છે, જે સૌથી મોટામાં મોટી માછલી છે સમુદ્રની અત્યાર સુધી. તો એ લોકો પણ માઇગ્રેશન કરે છે. આ મેપમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યાં ક્યાંથી માઇગ્રેશન કરે છે. એ ઉપરાંત જે તમે બધા બહુ બધા પિક્ચર જોયું છે, ઝોઝ કરીને, જોઝ મૂવી, જોઝ 1, 2, 3, એમાં જે ગ્રેટ વ્હાઇટ શાર્ક બતાવી છે એ પણ માઇગ્રેટ કરે છે. એ સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી લઈ અને હવાઈ સુધી માઇગ્રેટ કરતી જોવા મળી છે. એ ઉપરાંત એક બ્લુ ફિન ટુના કરીને નાની માછલી આવે છે, નાની તો ના કે ખાસી મોટી આવે છે, એ પણ અક્રોસ ધ પેસિફિક ઓશન છે, નોર્થ પેસિફિક ઓશન, ત્યાં માઇગ્રેશન કરે છે એમનું દર વર્ષે. એ ઉપરાંત તમને બધાને ખબર છે કે આપણા ઓરિસ્સામાં ગહીર માથા છે, કે આપણા ગુજરાતમાં કચ્છ છે, ત્યાં આગળ કાચબા દર વર્ષે એમનું ઈંડા મૂકવા આવે છે. હવે ઈંડા મૂકવા આવે છે તો એ જાય છે તો ખરા ને ગમે ત્યાં સુધી, તો ત્યાંથી પણ એ લોકો માઇગ્રેશન કરીને જ પાછા આવે છે. અને એમનું માઇગ્રેશન એ પ્રકારનું હોય છે કે એમને ખબર હોય છે કે મારે પાછું ક્યાં જવું, એટલે એ પ્રકારનું માઇગ્રેશન એવો કરતા હોય છે. એવી રીતે જે આ લેધરબેક છે, લેધરબેક સી ટર્ટલ, એ આપણે વેસ્ટર્ન કોસ્ટ ઓફ અમેરિકાથી લઈ અને એ લોકો ઇન્ડોનેશિયા સુધી આવે છે, ત્યાં બ્રીડિંગ કરીને પાછા ત્યાં જાય છે,
અને પાછા ત્યાં આવે છે. એવી રીતે જે આપણો ગ્રીન સી ટર્ટલ છે એનું એક પોપ્યુલેશન. હવે હું જયારે પોપ્યુલેશનની વાત કરું તો તમને એવું લાગતું છે ગ્રીન સી ટર્ટલ તો આપણે ત્યાં પણ આવે છે, તો હમણે સાઉથ અમેરિકાનું કેમ લખ્યું? તો બધા જ પ્રાણીઓ કે બધા જ પક્ષીઓની કે બધા જ લિવિંગ બીંગ્સની પોપ્યુલેશન્સ હોય. બર્ડ્સની પણ તમે આગળ જતા હું તમને એક માઇગ્રેશન આવે છે કે જે પોપ્યુલેશન પર ડિપેન્ડ છે, એ હું તમને સમજાવીશ કે એક પોપ્યુલેશન એક જ જગ્યાએ રહેતું હોય તો એને આપણે એ પોપ્યુલેશન કહીએ છીએ. બીજી જગ્યાએ પોપ્યુલેશન રહેતું હોય તો આપણે બી પોપ્યુલેશન કહીએ છીએ. તેવી રીતે જે એટલાન્ટિક ઓશનનું પોપ્યુલેશન છે ગ્રીન સી ટર્ટલનું, એ આપણે આવે છે સાઉથ અમેરિકા, બ્રાઝિલ આગળ એનું બ્રીડિંગ કરવા અને પાછી એ કરવા નેક્સ્ટ ખાવા માટે, અને પાછું એ લોકો એક એક્સેશન આઇલેન્ડ છે ત્યાં આગળ લોકો બ્રીડ કરવા જાય છે. એટલે એ પણ એક જાતનું માઇગ્રેશન કરે છે ગ્રીન સી ટર્ટલ. એના પછી આપણે જોઈએ કે મરીન મેમલ. તમને ખબર છે આ જે હલતું ચિત્ર છે બ્લુ વેલ, એ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ મેમલ ઓફ ધ અર્થ. એ પણ માઇગ્રેટ કરે છે. એ ક્યાં માઇગ્રેટ કરે છે? તો તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં આંગળી એ લોકો ગરમ પાણી છે ત્યાં આંગળી એ લોકો એનું બ્રીડિંગ કરવા આવે છે. આ જે વિષુવવૃત્ત પ્રસાર થાય છે 0 ડિગ્રી ઇક્વેટર, ત્યાં આંગળી ગરમ પાણી હોય છે થોડું, એટલે ત્યાં આંગળી લોકો એનું બ્રીડિંગ કરવા આવે છે. અને જે ફીડિંગ ગ્રાઉન્ડ છે એમનું મોસ્ટલી એમનું નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલમાં હોય છે. એટલે ત્યાં આગળ ફીડિંગ કરી અને પછી બ્રીડિંગ અહીંયા ઇન્ડિયન ઓશન છે કે અહીંયા એટલાન્ટિક ઓશન છે કે અહીંયા પેસિફિક ઓશન છે ત્યાં આવે છે. એટલે એ બ્લુ વેલ પણ એવી રીતે માઇગ્રેટ કરે છે. સાથોસાથ આ એક સાઉથ એટલાન્ટિક હમ્પવેલ છે, એ પણ બ્રાઝિલથી લઈ અને તમારું નીચે સધર્ન પોલ સુધી બ્રીડિંગનું આખું એ લોકોનું માઇગ્રેશન ચાલુ હોય છે. એ ઉપરાંત નોર્ધન એલિફન્ટ સીલ છે, એ કેલિફોર્નિયાથી લઈ વેસ્ટર્ન કોસ્ટ ઓફ અમેરિકાથી લઈ અને અલાસ્કા ગલ્ફ ઓફ બે ઓફ અલાસ્કા સુધી એ માઇગ્રેશન કરે છે. એટલે એ પણ રેકોર્ડ થયેલું છે. એટલે આવી રીતે મરીન મેમલ્સ પણ સમુદ્રની અંદર માઇગ્રેશન કરે છે, જેવી રીતે ફિશ કરે છે. હવે જોઈએ કે લેન્ડ મેમલ. તો જે લેન્ડ મેમલમાં તમે માઇગ્રેશન જુઓ તમે, તો એક તો આ જે દોડતું પ્રાણી છે વિલ્ડબીસ્ટ, એ બહુ ફેમસ છે માઇગ્રેશન માટે. એ સવાનામાં જે એનું માઇગ્રેશન થાય છે, 1.2 બિલિયન વિલ્ડબીસ્ટ દર વર્ષે 3000 કિલોમીટરનું રાઉન્ડ અંતર કાપે છે. આખો ગોળાકાર જે આપણે રાઉન્ડ કહીએ ને, સર્કિટ મારીએ છીએ, દોડવામાં સર્કિટ મારીએ છીએ, એવી રીતે કોઈ દોડવામાં સર્કિટ 3000 કિલોમીટરની દર વર્ષે મારે છે. એનું આખું આ મેપમાં તમને બતાવ્યું છે કે ઓગસ્ટમાં ક્યાં હોય છે, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, પછી જાન્યુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, જૂનમાં ક્યાં હોય છે. અને એ ઉપરાંત જે આપણું તિબેટમાં એક હોય છે ટિબેટિયન એન્ટિલોપ ચીરુ કરીને, એ પણ એના બ્રીડિંગ માટે, એટલે જ્યારે બ્રીડિંગ કરે ને પછી એના બચ્ચાને જન્મ આપવા માટે 300 કિલોમીટર કાપે છે અને ત્યાં બચ્ચાને જન્મ આપે છે. બચ્ચું મોટું થાય એટલે પાછું એના ફોરેજિંગ ગ્રાઉન્ડમાં જાય છે. એ ઉપરાંત આફ્રિકન સ્ટ્રો કરલ ફ્રૂટ બેટ છે. અત્યારે તો આપણું કોરોના છે એટલે બેટથી તો આપણે દૂર જ ભાગીએ છીએ, પણ એક આફ્રિકામાં એક સ્ટ્રો કરલ ફ્રૂટ બેટ હોય છે, જે ઝામ્બિયાથી લઈને કોંગો સુધીનું 2000 કિલોમીટરનું અંતરનું માઇગ્રેશન કરે છે. અને એવી રીતે નાનું ઉંદર જેવું પ્રાણી આવે છે, લેમિંગ કરીને, આટલું આવે છે. નોર્વેનું લેમિંગ છે, એ પણ જેમ જેમ ઠંડી વધતી જાય એમ એમ નીચે આવતું જાય, જેમ જેમ ઠંડી ઓછી થતી જાય એમ એમ પાછું એ નોર્થમાં જતું હોય છે. એટલે આ માઇગ્રેશન લેન્ડ મેમલમાં પણ થાય છે. એ ઉપરાંત હવે આપણે જોઈએ કે હ્યુમન, આપણે તો માઇગ્રેશન કરતા જ હોઈએ છીએ. આપણામાં બે જાતના હોય છે. આપણામાં એક ઇમિગ્રેશન હોય છે. તમને મેં કહ્યું હતું આગળ કે માઇગ્રેશન ઇમિગ્રેશન શું ફરક છે. તો આપણા ઇન્ડિયામાંથી ઘણા લોકો, આપણા ગુજરાતી ઘણા લોકો જાય છે અમેરિકા, યુકે, એ જાય છે એઝ અ ઇન્ડિયન સિટીઝન. પાછા આવે છે તો ઇન્ડિયન સિટીઝન તરીકે નથી આવતા. એ લોકો યુએસ સિટીઝન કે યુકે સિટીઝન તરીકે પાછા આવે છે. એટલે એ લોકો ઇમિગ્રેશન કરે છે. ઇમિગ્રેશન એટલે એક બાજુ એક જગ્યા પર જવું અને ત્યાં જ થઈને રહેવું, વધારે એનું મેજોરિટી ઓફ લાઈફ. પણ જ્યારે આપણા જ ગુજરાતમાં કચ્છના અમુક ટ્રાઇબ્સ છે, અમુક પશુપાલકો છે કે જે ઊંટને રાખે છે, એ લોકો દર ઉનાળામાં વરસાદની સાથે લોકો નીચે આવે છે અને પછી પાછા એ લોકો એમના કચ્છમાં જાય છે. આ તમને પિક્ચર તમને દેખાતું હશે. એટલે આ કચ્છમાં પાછા જઈ રહ્યા છે લોકો. જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે એ લોકો કચ્છમાં જાય, અને જ્યારે ઉનાળો આવે ત્યારે લોકો અહીંયા આવે, કારણ કે અહીંયા એમને ખાવાનું બધું મળી રહે છે. એટલે એ માઇગ્રેશન આપણે હ્યુમન પણ માઇગ્રેશન કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત હાયર એલ્ટિટ્યુડમાં તમે લદ્દાખ કે તમે હાયર હિમાલયમાં જાઓ તો એ લોકો પણ ઉપર નીચે માઇગ્રેશન, એલ્ટિટ્યુડ માઇગ્રેશન કરે છે. જેમ ઠંડી પડે એમ નીચે આવે છે, જેમ ઠંડી ઓછી થાય એમ ઉપર જાય છે. ઇવન આપણા ભગવાન પણ માઇગ્રેશન કરે છે. આપણું કેદારનાથ છે, તમે ઠંડીમાં બંધ થઈ જાય છે ભગવાન, ને ભગવાન નીચે આવતા રહે છે. પછી જ્યાં ઠંડી ઓછી થાય ત્યારે ભગવાન પાછા ઉપર જાય છે. એટલે માઇગ્રેશન એવી રીતે પણ થતું હોય છે.
હવે એ તો આપણે સર જોયું કે માઇગ્રેશન એઝ અ હોલ જોયું, પણ અત્યારે હું તમને વધારે કહીશ કે બર્ડ અને માઇગ્રેશન, કે માઇગ્રેશન ને બર્ડ કેવી રીતે એકબીજા જોડે કનેક્ટ છે. સર હવે સોરી, પહેલું તો આપણે, હા, હિન્દીમાં જરા કહેજો ને, ओके ओके। કેમ કે હા હિન્દીમાં हाँ, સ્ટાર્ટ કરજો ને પ્લીઝ. तो हम देखते हैं अभी, चलो कि कैसे माइग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई विल डू नीड द माइग्रेशन, वाई बर्ड कांट स्टे वॉट एवर इन द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एवर और इन द फॉरेजिंग ग्राउंड फॉर एवर, because in the breeding ground which is most of the time is near to the pole, the in case of the water birds, तो वहां पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर वो वहां पे इतनी ज्यादा देर तक रह नहीं सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दिया है स्नोई प्लोवर करके। तो स्नोई प्लोवर क्या, एक छोटा सा बर्ड है जो पोल्स की नजीक नजदीक रहता है। तो वहां पे जब वो ठंड बढ़ जाती है तो उसको वहां से मूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी फ्रीज टू डेथ। और दूसरा है कि अगर ठंड हो जाती है तो क्या होता है कि उसका खाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि वाटर विल बी फ्रीज डाउन, और वहां पे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी फ्रीज हो जाएंगे, तो उनको मिल नहीं पाते। तो उनको फूड चाहिए बर्ड को, इसीलिए वो जब फूड कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए दे आर डूइंग द माइग्रेशन। एंड दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला पहले कि माइग्रेशन में जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं बर्ड्स, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो प्रीडेटर एनिमल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आर्कटिक फॉक्स है, जो प्रीडेटर एनिमल होता है वो उसके बच्चों को खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको भी हाइबरनेट होना है। अभी बीइंग अ मैमल he can't go as far as like a bird, so what they are doing the hibernation, but because for the hibernation they have to have lot of protein, lot of fat inside them, so they are eating their young ones as well। तो वो जो यंग वंस को खतरा है इसको रेडिकल कर इसको निकालने के लिए बर्ड्स आर डूइंग माइग्रेशन। तो दे आर द couple of reason why the birds are doing migration। तो ओके, तो व्हाई वी हु टेल बर्ड के ओके अभी टाइम आ गया भाई, अभी तुम माइग्रेट करना चालू कर दो। जैसे अगर इफ वी वांट टू गो एनीवेयर, तो वी हैव वॉच, वी हैव रिमाइंडर ऑन द मोबाइल, तो वी कीप द रिमाइंडर, ओके ये तारीख को मुझे यहाँ पे इतने बजे जाना है। तो बर्ड को कौन प्रोवाइड करेगा, हु विल टेल बर्ड के ओके दिस इज टाइम फॉर यू टू गेट गो समवेयर एल्स। सो बर्ड हैव वेरी पिक्यूलर सेंस ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डे। अगर आज जो सन है वो 6 बजे सेट हुआ है, कल वो होगा 6 बजने से 1 मिनट पहले 5:59 पे सेट होगा, उसके बाद वो 5:58 पे सेट होगा, उसके बाद वो 5:55 पे सेट होगा। तो हमको नहीं पता चलता है, इतना इतना बारीक जो है ऑब्जर्वेशन, वी आर नॉट एबल टू गेट दैट स्मॉल ऑब्जर्वेशन, बट बर्ड आर ऑलवेज एबल टू गेट द स्मॉल ऑब्जर्वेशन के लेंथ, जो दिन के जो लेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। और डिक्रीज कब होते हैं, जब विंटर चालू होता है तब वो डिक्रीज होते हैं। तो उनको एक 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 उनको मिलता है उसको स्टिमुलस मिलता है लेंथ ऑफ द डे से, कि जब लेंथ छोटे होना शुरू हो जाते हैं यानी उनको पता लगता है ओके दिस इज टाइम फॉर अस टू गेट मूव टू अनदर प्लेस। देन टेम्परेचर फॉल चालू हो जाता है, दे ऑल्सो वेरी मच ससेप्टेबल और वेरी मच क्या बोलते हैं उसको, उनको बहुत वो टेम्परेचर से बहुत अफेक्ट होते हैं वो बर्ड्स। यानी उसमें थोड़ा भी टेम्परेचर में डाउन आएगा तो बर्ड विल गेट टू नो के टेम्परेचर इज कमिंग डाउन, तो वी हैव टू गो फ्रॉम हियर टू समवेयर वार्म प्लेस। देन डिप्लीशन ऑफ फूड सप्लाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिकॉज ऑफ द वाटर कंडीशन सॉइल फ्रॉस्ट परमाफ्रॉस्ट हो जाता है सॉइल का, उनका जो एबिलिटी है फूड का तो वो खत्म हो जाता है, फूड इतना रहता नहीं है, तो इसके लिए भी वो माइग्रेट करना चालू करते हैं। उसके बाद ऐसे ही नहीं उठ के तुरंत नहीं कि चलो हाँ चलो अभी तो दिन नीचे आ गया है और टेम्परेचर इज डाउन, फूड इज नॉट देयर, लेट डू माइग्रेशन, ऐसा नहीं करते। दे हैव टू अंडरगो लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज, देन ऑल्सो दे आर रेडी फॉर डूइंग माइग्रेशन, प्रॉपर परफेक्ट माइग्रेशन। अगर ये नहीं होगा तो उनका माइग्रेशन माइट बी पॉसिबल कि आधे रास्ते में खत्म हो जाए, माइट बी पॉसिबल कि वो वहां पे पहुंच ही नहीं पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पहले तो वो बहुत खाना शुरू कर देते हैं। वो जो भी मिले यानी जो भी उसके फूड आइटम्स है वो जितना भी मिले वो अपना दिन का 98% टाइम वो खाने में ही डिवोट करते हैं और उनका वेट गेन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है रेड नोट का, वो जो प्री माइग्रेशन में अपने बॉडी वेट का 66% ज्यादा खा के बड़ा हो जाता है,
और जब वो पहुंचता है जहाँ पे उसकी विंटरिंग साइट है, कि जहाँ पे वो खाना खाने के लिए पहुंचता है, तो वो सिर्फ वो 3% हो जाता है उसका बॉडी वेट का। यानी इतना जो फैट का जो है वो उतना बढ़ जाता है, 66% से लेकर 3% तक चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, वी ऑल नो दैट बर्ड्स आर यूजिंग देयर फेदर्स टू फ्लाई। तो नए फेदर्स भी आना जरूरी है। तो उसका फेदर्स का जो प्रोसेस है उसको हम लोग मोल्टिंग बोलते हैं। तो मोल्टिंग को देख के हमको पता लग सकता है कि ओके दिस बर्ड इज रेडी टू माइग्रेट, और ये बर्ड अभी अभी माइग्रेशन से वापस आया, डिपेंडिंग अपॉन द साइट। तो एक मोल्टिंग शुरू हो जाता है। फिर उनके जो गोनेड होते हैं, मेल फीमेल गोनेड, अभी उनका ब्रीडिंग तो हो गया, बच्चे तो पैदा हो गए, तो देर इज नो नीड फॉर हैविंग सच अ ह्यूज गोनेड, क्योंकि अगर गोनेट बड़ा होगा तो उनके शरीर में ज्यादा जगह रोकेगा, तो उनका जो जो फैट फैट जमा करने का जो स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो गोनेट है ना, गोनेट उनके श्रिंकिंग हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं फॉर द टाइम बिंग, टिल द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन। तो वो छोटे हो जाते हैं, और क्योंकि उनको ज्यादा देर तक फ्लाई करना है, सो दे हैव टू हैव गुड ऑक्सीजन सप्लाई इन देयर ब्लड। तो उसके लिए उसके हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज होना चालू हो जाते हैं। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसकी वजह से बर्ड इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू डू माइग्रेशन। देन बिहेवियर चेंज हो जाता है शुरू। वो जो अकेले, यानी एक 10 क्रेन का, डोमिसल क्रेन का ग्रुप यहाँ पे है, 10 डोमिसल क्रेन का ग्रुप यहाँ पे है, 10 का यहाँ पे है, तो वो सब अभी फ्लॉक फॉर्मेशन करने लगते हैं कि जब चलो जब इकट्ठे चलते हैं। जैसे भीड़ में जब जाते हैं तो कोई खतरा नहीं रहता है, वैसे वो फ्लॉक फॉर्मेशन चालू कर देते हैं, वो उसका बिहेवियर का चेंज हो जाता है। फिर उसको रेस्टलेसनेस होने लगती है कि नहीं नहीं चलो यहाँ से जाना है, नहीं नहीं चलो यहाँ से जाना है, हम जाते हैं कहीं पे। तो वो भी उसके बिहेवियर में तो आपको दिखता है कि वो एक एक जगह बैठे नहीं रहेंगे। जब भी माइग्रेशन शुरू होगा तो एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, वो यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, यानी वो रेस्ट, वो अभी बेचैन हो रहे कि यहाँ से हमको अभी जाना है बाहर। तो ये उसके बिहेवियरल चेंज है। तो ये तो सब हो गए कि बर्ड अपने आप को कैसे तैयार करता है, बर्ड्स को कैसे पता चलता है, और बर्ड का बिहेवियर देखे तुमको कैसे पता चलता है कि भाई ये माइग्रेशन के लिए रेडी है। तो ये तो हो गया वो। अभी है बी फॉर माइग्रेशन, बर्ड से माइग्रेशन में है टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। तो एक ही टाइप से बर्ड माइग्रेट नहीं करता है, बर्ड माइग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स है। जो मैंने थोड़े बताया है उससे ज्यादा भी बहुत सारे हैं, मगर मैंने कुछ बेसिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ बर्ड माइग्रेशन के टॉपिक्स, एग्जाम्पल। तो एक है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। वो क्या सीजनल रहता है एक तो और उसका मेन एग्जाम्पल है आर्कटिक टर्न। वो अपने लाइफ टाइम में, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में वो 70,000 किलोमीटर का ट्रैवल करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखो, एक एक ही उसमें विद इन विंटर क्रॉस, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैप है वहां पे आपको दिखेगा कि सदर्न लेग में वो 34,000 किलोमीटर का ट्रैवल करता है, और रिटर्न में वो करता है 25,000 किलोमीटर का। यानी एक छोटा सा पक्षी आर्कटिक टर्न वो पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता रहता है, वो रहता ही नहीं कहीं पे, वो चक्कर लगाता ही रहता है। यहाँ पे स्टॉप होगा, फिर आगे जाके यहाँ पे खाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, वापस ऊपर जाए खाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, वो चक्कर लगाते रहता है अपने ब्रीडिंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। फिर कोई होते हैं जैसे अपनी ब्लैक शोल्डर काइट है, ब्लैक विंग काइट जिसको बोलते हैं, वो उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता है कि आज कहाँ पे जाएगी वो। इट विल फॉलो द फूड, जो फूड जहाँ पे होगा वो वहां पे जाएगी। आज यहाँ पे फूड है तो यहाँ पे रहेगी, कल वहां पे फूड है तो वहां पे जाएगी। तो वो इरेगुलर माइग्रेट्स कहता है, कहलाते हैं, माइग्रेशन कहलाता है। वो नोमेडिक होता है, जहाँ पे फूड होगा वहां पे जाएगी। तो इसका क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन का उनको पता है वेर इज माई फ्यूल स्टॉप एंड वेर इज माई विंटरिंग ग्राउंड, तो उसके बीच में ही आएगा। ये जो है वो कहीं पे भी जा सकती है। यानी देर आर टू टाइप ऑफ माइग्रेशन। देन देर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। कोई पक्षी होते हैं जैसे ब्लैक रेड स्टार्ट है, वो हिमालय से यहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। हम बोलेंगे यार हिमालय भी इंडिया में है, गुजरात भी इंडिया में है, तो कैसे माइग्रेशन हुआ? नहीं, माइग्रेशन का वैसा नहीं होता कि यू हैव टू क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री। माइग्रेशन कोई भी प्रकार का होता है। जैसे आप अपने, आपका जो विंटरिंग ग्राउंड है जहाँ पे आप पैदा हुए वो छोड़ के आप खाने के लिए कहीं और जाते हो और फिर वहां पे वापस ब्रीडिंग करने के लिए जाते हो, तो ये ब्लैक रेस्टार्ट है वो ऐसा होता है जो फ्यू 100 किलोमीटर आता है। वो एलिवेशन में भी थोड़ा चेंज हो सकता है। देन ये अपना ब्लू रॉक पिजन जो यहाँ पे ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता। हाँ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर अगर आपके घर पे है तो आपके घर से 5-6 किलोमीटर के रेडियस में घूमेगा, मगर उससे कहीं नहीं और नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रेसिडेंस बर्ड बोलते हैं। फिर होता है लूप। अभी लूप में भी जो है वो एक एनुअल साइकिल होता है।
वही फॉलो करते हैं, उससे कहीं और नहीं जाते बर्ड। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रूफूस हमिंग बर्ड, वो बहुत छोटा सा है एक हमिंग बर्ड। वो आप नॉर्थ अमेरिका से लेके मैक्सिको तक आता है, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर वापस चला जाता है, लूप में घूमता रहता है हर बार, जब तक वो डेड नहीं हो जाएगा तब तक वो लूप में घूमता रहेगा। विंटर जैसे जैसे महीने आते हैं वैसा। फिर एक होता है लीफ फ्रॉग माइग्रेशन। अभी मैंने आपको बताया था पहले के पॉपुलेशन होते हैं बर्ड्स के अलग अलग, तो ये पॉपुलेशन यहाँ पे काम पे आएगा। जैसे एक बर्ड है फॉक्स पैरो, उसका 1 नंबर का पॉपुलेशन यहाँ पे है, 2 नंबर का पॉपुलेशन यहाँ पे, 3 नंबर का यहाँ पे, 4 नंबर का यहाँ पे, 5 नंबर का यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, और 6 नंबर का यहाँ पे, तो सब लोग एक साथ में माइग्रेशन करना शुरू करेंगे। तो ये छह छह पॉपुलेशन अगर 1000 बर्ड ईच आप गिनो, तो 6000 बर्ड अगर एक ही जगह पे पहुंच गए नंबर 4 साइड पे, तो वो लोग क्या कर सक वो लोग खाना इतना नहीं होगा उनके पास, क्योंकि एक छोटे से एरिया में 6000 बर्ड्स आ गए तो उनको खाना कम पड़ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे वन 2 नंबर का पॉपुलेशन है, वो 1 2 और 3 नंबर का पॉपुलेशन है, जो वो 3000 बर्ड वो दूर जाएंगे उड़ के। जो 4 नंबर का है वो थोड़ा कम दूर जाएंगे, जो 5 नंबर का है वो थोड़ा और कम दूर जाएंगे। यानी उनका डिस्पर्जर ऐसा होता है, जैसे एक पॉपुलेशन यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, तो सबको अच्छा फूड मिलेगा, सबको अच्छा खाने को मिलेगा, यानी उनके माइग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं लीप फ्रॉग माइग्रेशन, ऐसा ऐसा करके जाता है। फिर एक होता है लैटिट्यूडल माइग्रेशन, ये आपको पता है, अमूर फाल्कन अभी 2 3 दिन पहले ही डॉक्टर सुरेश सर ने काफी कुछ इसके बारे में हमको समझाया था। तो ये होता है लैटिट्यूडियन, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता है कोई भी बर्ड। तो ये अमूर फाल्कन है कि जो नॉर्थ यहाँ पे अमूर रीजन है साइबेरिया का, वहां से लेके अपने मिजोरम होके अपने गुजरात में भी कभी आता है, वहां से जाता है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जाके वो डिस्पर्स हो जाता है। फिर वापस जब रिटर्न माइग्रेशन चालू होगा तब वापस वहां पे जाके अपने अमूर वहां पे जाता है। फिर एक है लॉन्जिट्यूडल माइग्रेशन। अभी लॉन्जिट्यूडल माइग्रेशन क्या है कि एक ही लॉन्जिट्यूड पे वो माइग्रेट करेगा। जैसे फ्लैमिंगो है, ग्रेटर फ्लैमिंगो, इट विल गो फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, ऐसे ऐसे माइग्रेट करेगा, हॉरिजॉन्टल माइग्रेट करेगा, ऐसा वर्टिकल नहीं माइग्रेट करेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूडल माइग्रेशन। Then there is another type of altitudinal migration. This is a small bird of canary-headed gray-headed canary flycatcher. तो ये क्या है कि ये एक ही अल्टीट्यूड में माइग्रेशन करेगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि जनवरी में वो नीचे एल्टीट्यूड में है, बिलो 500 एल्टीट्यूड पे है, क्योंकि वहां पे ठंडी कम रहती है। और फिर आगे आप देखोगे तो जब सितंबर आएगा तब ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, सेम ऐसा होता है। यानी वो एक ही माउंटेन रेंज पे या एक ही एल्टीट्यूड पे नहीं रहेगा, अलग अलग एल्टीट्यूड पे जाएगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, कोई कंट्री बंट्री क्रॉस नहीं करेगा वो। उसको एल्टीट्यूड माइग्रेशन बोलते हैं। फिर डिस्पर्जल होता है। डिस्पर्जल में क्या होता है कि हर सारा के बर्ड डिस्पर्जल करते हैं। जैसे हमने आगे ये देखा अमूर फाल्कन, वो भी यहाँ पे आके तो डिस्पर्स ही होगा, क्योंकि सब अगर आप गैस करो कि 10 लाख अमूर फाल्कन एक ही जगह पे रह गए तो उनको खाना ही नहीं मिलेगा, तो दे हैव टू डिस्पर्स। तो डिस्पर्स होते हैं वो। और इसका मेन एग्जांपल ये अपना ये अपना इंडियन ग्रे हॉर्नबिल भी है। जैसे चिक बड़े हो जाते हैं तो मदर फादर उसको अपना जो होम रेंज है उससे बाहर निकाल देते हैं, ताकि मदर फादर को फूड का कंपटीशन नहीं रहे। तो वो बेचारा वो चीक यहाँ से लेके वहां गया तो वो डिस्पर्स हुआ, तो फिर वहां से आगे भी जा सकता है यार, वहां से ऐसे भी जा सकता है। तो ये डिस्पर्जर होता है इसका, to seek new territories. Abhi we know come to know that okay, birds are doing migration and birds are preparing them for themselves for migration. But how they navigate? Okay, if we want to go from here to Ahmedabad or to Surat, we have Google Map in our hand right now. Okay, or we have the all the डायरेक्शन ऑन द मैप और डायरेक्शन ऑन द रोड कि अच्छा यहाँ से ऐसा टर्न मारो तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ से ऐसा टर्न मारो तो यहाँ जाओ। बर्ड्स के लिए वहां पे ऊपर कौन गूगल मैप और करके बैठेगा। तो उनकी सेंसेस बहुत कीन होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दे कैन डिफरेंशिएट द डे लेंथ एज वेल। तो उनकी सेंसेस मैग्नेटिक भी होती है। जैसे अर्थ का जो मैग्नेटिक है, जो नॉर्थ साउथ का, वो मैग्नेटिक फील्ड को वो जज करके दे कैन फाइंड देयर वे कि कहाँ पे मुझे जाना है। देन दे हैव वेरी कीन आईसाइट होती है उनकी, तो उनको ऊपर से दिखता है कि अच्छा ये वडवाना का मैंने आपको मैप दिया है। यहाँ पे वडवाना एक वेरी ग्रेट वेटलैंड वडवाना नियर द बड़ोदरा। तो वहां का जो ऊपर का जो गूगल अर्थ का मैप है मैंने आपको दिया है। तो जैसे ही बर्ड जो वडवाना में आते हैं माइग्रेट होके ड्यूरिंग द अक्टूबर से लेके फरवरी एंड तक,
उनको पता है कि अच्छा ऊपर से वडवाना ऐसा दिखता है, तो दे हैव द इमेज इन देयर ब्रेन कि ओके यहाँ से ऐसा दिखता है तो वी विल गो दिस टू दिस साइड, दिस इज अवर होम, विंटरिंग होम, लाइक ऐसा करके। तो वो यहाँ पे आते हैं जिसके लिए तो उनको कीन आई साइड मिली होती है। फिर जो बर्ड्स रात को माइग्रेट करते हैं वो कैसे करते हैं, तो जो कॉन्स्टलेशन होते हैं ये स्टार के अलग अलग, सप्तपदी है या हंटर ओरायन है, वो सबको ध्यान में रख के दे आर डूइंग द माइग्रेशन ड्यूरिंग नाइट एज वेल। तो माइग्रेशन इज द प्रोसेस कि वो दिन रात चलता है, ऐसा नहीं कि अगर दिन हुआ तो शुरू हुआ रात को बंद हो गया। आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से कोई कोई है कि जो रात को ही करते हैं माइग्रेशन, कोई है जो दिन को ही करते हैं माइग्रेशन, वैसा भी होता है। अभी है अल्टीट्यूड। अभी माइग्रेशन कोई करता है तो सीधा सीधा जाएगा एक ही अल्टीट्यूड पे, 100 फीट के अल्टीट्यूड पे जाएगा। संभव है कि सामने पेड़ आ गया, मकान आ गया, पहाड़ आ गया, तो उसके लिए उसको एल्टीट्यूड अपना बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको दिया गया यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैप जैसा लगाया है, फिगर जैसा लगाया है कि कौन कौन से बर्ड्स कहाँ कौन कौन से एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं ड्यूरिंग द माइग्रेशन। जैसे आप देख सकते हो कि डक एंड गीज है, वो 15,000 सॉरी 15,000 फीट पे वो माइग्रेट करते हैं, उससे ज्यादा बहुत ऊंचे नहीं जाते हैं। फिर जो ईगल्स है, दे आर मूविंग, दे आर फ्लाइंग एट द एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 फीट। तो और जो सबसे हाईएस्ट फ्लाइंग एल्टीट्यूड करने वाला है वो है बार हेडेड गीज। हमारा जो कॉमर्शियल जो है हमारा एयरलाइंस, वो भी चलता है यहाँ पे 35 से 30 तक, और बार गिर गीस भी 30,000 फीट पे उड़ते हैं वो, जब वो माउंट एवरेस्ट को क्रॉस करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना ऊंचा वो लोग उड़ते हैं टू क्रॉसिंग द हिमालयस फ्रॉम तिब्बत। जब वो आते हैं फ्रॉम तिब्बतियन प्लेटू से होके हमारे अपने इंडिया में, तो वो ऐसा क्रॉस करके पूरा हिमालय को क्रॉस करके आते हैं। और उसके साथ उसकी स्पीड भी अलग अलग होती है। हर एक जो बर्ड होता है उसकी स्पीड एक नहीं होती है, हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है उड़ने की। तो उसकी स्पीड भी अलग होती है। जैसे ऑस्प्रे है वो 30 to 46 माइल पर आवर पे वो उड़ सकता है, मगर वो छोटा एक बेबलर आता है वो 15 to 33 माइल पर आवर पे ही उड़ सकता है क्योंकि वो छोटा है। तो माइग्रेशन में एल्टीट्यूड एंड स्पीड भी मायने रखते हैं, वो भी उसका एक भाग है माइग्रेशन का। तो मैंने आपको पहले बताया जैसे कि माइग्रेशन के टाइम्स होते हैं और कैसे कब कौन कहाँ माइग्रेशन करेगा। तो कुछ होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं जैसे बायरेडर गीज एंड सिनियरस वल्चर, दे आर डे माइग्रेट्स। व्हाई दे आर डे माइग्रेट्स, और रात को क्यों नहीं उड़ते, क्योंकि दे आर द हैवी बर्ड्स। सिनियरस वल्चर एंड बायरेडर गीज बोथ आर हैवी बिग बर्ड्स। तो व्हाट दे आर यूजिंग द जो अपने पता है आपको, आपने देखा होगा कि दोपहर में ऊपर अगर आप स्काई में देखते हो तो ब्लैक काइट वहां पे ऐसा सर्कल सर्कल लगाती रहती है। तो वो क्यों सर्कल ऐसे लगाती है, नीचे क्यों नहीं आ जाती है, क्योंकि वो थर्मल जो विंड होता है उस पे वो सोर करती रहती है। तो ये दो जो बड़े बड़े बर्ड्स है वो भी ये थर्मल विंड का ही सहायता लेके वो अपना फ्लाइंग को थोड़ा कम कर देते हैं, यानी अपने एनर्जी को कंजर्व करते हैं। इसलिए वो दे आर माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग डे एंड वैसा करते हैं वो लोग। फिर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जैसे प्लोवर है, कल्यू है, वो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उनको खतरा लगता है कि दिन में अगर माइग्रेट मैंने चालू किया तो कोई अगर किसी रैप्टर ने या किसी ने पकड़ लिया मुझे तो मुझे प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो लोग रात को माइग्रेट करते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर कोई जो है कनाडा गूज करके एक बर्ड है, वो कनाडा में मिलता है, वो ग्रुप में माइग्रेशन करते हैं। तो ग्रुप में कैसा होता है, जैसे वी आकार का ग्रुप होता है उनका, और यहाँ पे एक लीडर होता है जिसको पता है कहाँ पे जाना है। और थोड़े थोड़े बार यानी 10-15 मिनट 15-20 मिनट ऐसे ऐसे वो लीडर बदलता रहता है। लीडर आगे रहेगा, वो ऐसा जब वो अपना पंख हिलाएगा तब जो एरोडायनेमिक क्रिएट होगा उससे पूरे ग्रुप को फायदा रहेगा। मगर लीडर को क्या तकलीफ रहेगी कि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसके लिए हर 15-20 मिनट या 1 घंटा में लीडर पीछे आएगा, कोई दूसरा लीडर आके खड़ा रहेगा यहाँ पे, यानी वो रोटेशन चलता रहता है उनका। तो वो ग्रुप में माइग्रेशन करते हैं। फिर कोई होता है जैसे अपने ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर, वो अकेला माइग्रेट करता है। ही डोंट लाइक मच फॉस अबाउट माइग्रेशन, वो अपने आप ही माइग्रेट करता है, किसी को पूछता नहीं कि भाई चलो मुझे मेरे साथ तुमको चलना है उधर, अपने आप माइग्रेट करता है। तो वो बिहेवियर हो गए। तो टाइम ऑफ द माइग्रेशन पे दो टाइप होते हैं, डे माइग्रेशन, नाइट माइग्रेशन। बिहेवियर पे दो टाइप होते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल माइग्रेशन। तो मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स बताऊंगा कि माइग्रेशन ट्रिविया क्या है। तो आपको ये दिख रहा है रूबी थ्रॉटल हमिंग बर्ड,
इज अ स्मॉलेस्ट माइग्रेंट। वो इतना छोटा है, आप सोचो इतना छोटा 24 आवर नॉट नॉन स्टॉप फ्लाई करके 500 to 600 माइल काट के वो अपने डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। फिर दूसरा है ये ब्लैक पोल बैबलर, वो एक हैवी वेट बैबलर है, उसका जो बॉडी वेट है उसका बॉडी वेट डबल कर देता है बिफोर फ्लाइंग 2300 माइल्स। तो ये एक हैवी वेट हो गया। जैसे फिर मैंने आपको बताया कि बायरडर गीस वो सबसे ऊंचा उड़ता है। फिर एक बार टेल गॉडविक है, वो नियरली 7000 माइल्स विदाउट स्टॉपिंग इज फ्लाइंग, नियरली 7000 माइल्स। देन देयर इज अ ग्रेट स्नाइप के जो एकदम फास्ट उड़ता है। जैसे मैंने आपको ऑस्प्रे का दिया, तो वो ऑस्प्रे से भी फास्ट उड़ता है एकदम। एंड इट कवर्स फॉर 4200 माइल्स एट द स्पीड ऑफ 60 mph। यानी इतना फास्ट उड़ता है, जैसे हम लोग यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं तो जो स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं ना, उससे भी वो फास्ट उड़ता है। और एक दूसरा होता है ईमू, ये ईमू भी ऑफर अपने पैर पे चल के जाता है, उसके पास पंख नहीं है, तो वो अपने पैर से माइग्रेशन करता है। तो ये माइग्रेशन ट्रिविया है आपके लिए, थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। फिर हम पता करते हैं कि चलो हमने देख लिया कि माइग्रेशन क्या होता है, हमने देख लिया कि बर्ड अपने आप को पता कैसे चलता है कि माइग्रेशन करना है, कैसे अपने आप को तैयार करता है, कौन कौन से टाइप से माइग्रेशन करता है, वो तो हो गया। चलो हमारा गाड़ी तैयार है, मगर हाउ वी नो कि अच्छा हमको ये रूट पकड़ना है। अगर हमको यहाँ से हम बॉम्बे जाना है तो कौन मुझे बताएगा कि NH8 पकड़ना है। चलो वो भी मेरा जो पापा मम्मी है उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो यहाँ से अगर तुमको बॉम्बे जाना है तो यू हैव टू टेक NH8। मगर NH8 कहाँ पे है? तो यहाँ पे तो मुझे दिखता है कि भाई हाँ ये गया NH8, मगर जब वो बर्ड जब आसमान में फ्लाई करते हैं, जब स्काई में फ्लाई करते हैं, दे डोंट नो where is where there is a highway or not highway. So they are then also they are moving in particular pattern और पर्टिकुलर एरिया में ही वो मूव करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाईवेज। तो आप ये मैप ये आप इमेज में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फ्लाईवे है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये फ्लाईवे उनके हाईवेज है। तो बर्ड जो फ्लाई करेगा वो ये ही फ्लाईवे के अंदर फ्लाई करेगा, तो उनको पता है कि हाँ वो कोई बर्ड यहाँ से लेके यहाँ पे जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर जनरली यही एरिया में वो फ्लाई करेंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लाईवेज। और अपने इंडिया में वैसे तो एक ही मेन फ्लाईवे है जो पूरे इंडिया को कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज। उसका छोटा नाम है कैफ। और वो आप देख सकते हो कि साइबेरिया जो है नॉर्थ पोल के नजदीक में रशिया का पार्ट, वहां से लेके आपको यहाँ मालदीव तक वो पूरा फ्लाईवे आता है। पूरे बर्ड के पॉपुलेशन ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स। वो 29 कंट्री को कवर करता है और 182 स्पीसीज के वाटर बर्ड्स ये फ्लाईवे का यूज करते हैं। और इसमें से 29 स्पीसीज के जो बर्ड है वो ग्लोबली थ्रेटन या नियर थ्रेटन स्पीसीज है। मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ग्रेट स्कार है, इंडियन स्कीमर है, प्रेटिंग कॉल है, बाराडर गीज है। तो दे आर यूजिंग दिस CAF यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, उसको यूज करते हैं वो लोग। फिर दूसरा है जो हमारे ईस्टर्न बाजू से जाता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। तो ये भी फ्लाईवे 37 कंट्री को फ्लाईवे में अंदर आ जाती है, 37 कंट्री। और उसमें 492 माइग्रेटरी स्पीसीज है, जिसमें से 7 क्रिटिकल एंडेंजर और 10 एंडेंजर स्पीसीज इसमें आती है। और इसमें ये जो मैंने इंडिया का अपना फ्लैग लगाया है वो सब इंडिया में भी देखने को मिलती है, वो फ्लाईवे की स्पीसीज। फिर दूसरा है, जैसे हमने ईस्टर्न का देख लिया, तो हमने अभी वेस्ट पार्ट का देखते हैं। ये फ्लाईवे में क्या होता है कि एग्जैक्टली हमारे देश के ऊपर से नहीं गुजरता है, मगर कहीं कहीं बार विंड की वजह से थोड़े थोड़े बर्ड्स हमारे वहां पे आ जाते हैं। वापस वो जाता तो वहां पे ही है, अफ्रीका में। उसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट एशिया ईस्ट अफ्रीका फ्लाईवे। वो 64 कंट्री को कवर करता है और 331 माइग्रेटरी स्पीसीज को इंक्लूड करता है। और इसमें 4 क्रिटिकल है और 6 एंडेंजर स्पीसीज है। और उसमें से ये बांस फेलो और नॉर्दर्न विटियर और ये विलो वार्बलर, वो 3 जो है वो अपने इंडिया में भी विंटरिंग में मिलते हैं। तो ये हुआ फ्लाईवेज। तो हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये फ्लाईवे बर्ड यूज कर रहा है? अच्छा, क्या बर्ड ये यहाँ से होके वहां तक गया या वहां से होकर यहाँ तक गया? हाउ वी नो? हम बर्ड पे बैठ तो नहीं सकते जब वो साइबेरिया से आएगा तब, कि भाई चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम जहां जहां जाओ हम लोग मार्क करेंगे कि ये तुम्हारा फ्लाईवे है। तो उसके लिए
रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो रिसर्च एंड माइग्रेशन में हम लोग कवर करेंगे कि एक तो बर्ड रिंगिंग, इसका डिटेल में अभी दूसरे दिन एक पूरा इसका सीरीज होगा बर्ड रिंगिंग का। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ बर्ड रिंगिंग का। कि बर्ड रिंग यानी बर्ड को हम लोग कैप्चर करते हैं, उस पर एक छोटा सा रिंग रखते हैं, और ताकि हमको पता चले कि यहाँ से रिंग किया हुआ बर्ड, साइबेरिया से रिंग किया हुआ बर्ड हमारे गुजरात में मिला, ताकि हमको पता चले अच्छा ये बर्ड साइबेरिया से गुजरात में आता है, बाकी हमको नहीं पता चलेगा। तो उसको हम लोग रोमन ने चालू किया था 218 बीसी में, और उस पे फिर जो फर्स्ट रिंगिंग स्कीम है वो 1903 में जर्मनी में चालू किया था। वो वहाँ भी जो यूके वाले लोग हैं उसको रिंगिंग बोलते हैं, अमेरिकन वाले हैं उसको बैंडिंग बोलते हैं। यानी अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ते हो और अमेरिका का और वहाँ पे बैंडिंग आए तो डोंट गेट कंफ्यूज, रिंगिंग एंड बैंडिंग आर बोथ सेम सेम वे, सेम टर्मिनोलॉजी। और बीएनएचएस ने स्टार्ट किया डॉक्टर सलीम अली के अंडर रिंगिंग चालू करना 1969 में। और अभी हमारे पॉइंट कैलिमर, चिल्का, यहाँ पे बिहार में एक सेंटर हमारा आ रहा है, और भरतपुर, ये 4 जगह पे हमारे रिंगिंग सेंटर अभी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो वी आर डूइंग रिंगिंग। अच्छा, अभी रिंगिंग करना तो एक बात है, हमको पता चल गया कि ये बर्ड वहां पे जाता है, वो बर्ड यहाँ पे आता है, ओके दैट वी नो। बट डू हाउ कैन वी मेक श्योर कि जो बर्ड यहाँ पे आते हैं विंटरिंग के लिए वो अच्छी तरह से यहाँ पे रह सके। तो उसके लिए उसका हैबिटेट मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि हमको पता चले कि भाई यहाँ पे जो वेटलैंड है, जैसे हमारे वहाँ पे बटवाना है, तो अगर हम बटवाना का मॉनिटरिंग करते रहेंगे हर बार, या नल सरोवर है, नल सरोवर का मॉनिटरिंग रेपिडेटली लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि उसमें पॉल्यूशन आता है नहीं आता है, क्या उसकी वाटर क्वालिटी है, क्या उसका फूड बेस है, क्या है नहीं है वो, तो वो हमको पता चलेगा कि ये जो वेटलैंड है, ये जो नल सरोवर है, इज द फिट इनफ टू वेलकम लॉट ऑफ द माइग्रेंट बर्ड्स। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा, हम देखेंगे ही नहीं उसके ऊपर, तो हमको पता ही नहीं चलेगा, और नल सरोवर वहां से खत्म हो जाएगा और बर्ड कभी कंफ्यूज कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये हैबिटेट मॉनिटरिंग, उसके साथ अवेयरनेस का क्रिएट करना भी जरूरी है। तो ये दो चीज है रिसर्च इन माइग्रेशन में, कि बर्ड रिंगिंग एंड हैबिटेट मॉनिटरिंग, वो दे आर गोइंग साइड बाय साइड। देन T फॉर माइग्रेशन, थ्रेट फॉर माइग्रेशन के थ्रेट क्या होते हैं माइग्रेशन में, व्हेन द बर्ड्स आर डूइंग माइग्रेशन व्हाट इज द थ्रेट दे आर फेसिंग। तो पहला तो आपको सबको पता है कि हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको वहां पे सब, आपने वेटलैंड है, वेटलैंड इज जनरली यूज एज अ वेस्टलैंड, इज अ कॉमन फिनोमिना। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ आता नहीं है, यहाँ पे पानी डालो, गंदा पानी डालो, और वहां पे सब खत्म हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि पूरा वेटलैंड खत्म हो गया। तो आप इमेजिन करो कि आप बर्ड हो एक, जो जो साइबेरिया से आते हो, आपने पूरा खाना वहां पे खा के अपना बॉडी बॉडी वेट बढ़ा दिया, और आप फ्लाई करते हो। ड्यूरिंग द फ्लाई यू आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, एंड यू आर यूजिंग योर बॉडी फैट फॉर एनर्जी, रिमेम्बरिंग और स्पेक्यूलेटिंग दैट कि आप जहाँ पे लैंड करने वाले हो वहां पे आपको खाना मिलेगा। तो वहां पे आप आते हो, देखते हो कि तो खत्म हो गया पूरा, तो यू डोंट हैव एनी प्लेस टू गो, क्योंकि आपको तो यही सिखा गया कि यहाँ पे हमारा प्लेस है, ये हमारा होम है, और यहाँ पे हम लोग आते हैं जब हमारा विंटर होता है तब। अभी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं खाने को, मैं भूखा हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं आजू बाजू जाके कहीं से खाना खा सकूं। तो एग्जॉर्शन और स्टार्वेशन से बर्ड मर जाते हैं। यानी तभी मैंने बोला आपको कि हैबिटेट मॉनिटरिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये एक थ्रेट हो गया। उसके बाद कॉलिजन होता है, जैसे आप देख रहे हो कि ग्रेट इंडियन बस्टर, आप देखो ये स्पाइडरमैन ने किसी ने वहां पे पूरे जाले बना के रखे हैं, और भी इसको, ये इस क्वाइट अ हैवी बर्ड, उसको इसमें से पास होना है, यानी उसको मौत आई समझो। यानी जब माइग्रेट करता है तब ये ऐसा हो जाता है, बीच बीच में आ जाता है, क्योंकि ये तार होते हैं ना, वो बहुत दूर से आपको दिखेंगे भी नहीं, तो बर्ड को भी नहीं दिखेंगे होता है, और नजदीक आएगा तभी दिखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो कुछ है। तो जैसे एकदम अपना एल्टीट्यूड बढ़ाने की ट्राई करता है, मगर वो हो नहीं पाता है और कोलाइड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक विंड मिल के साथ एक वल्चर ने टक्कर ली है, तो उसका एक पंख गया तो सीधा नीचे आके गिर गया। तो ये हुआ। फिर आपको सबको पता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑयल पॉल्यूशन, ये सब भी उसमें थ्रेट है माइग्रेशन में, कि जब बर्ड वहां पे खाना खाएगा इन देयर विंटरिंग ग्राउंड, जहाँ पे वो ब्रीडिंग ग्राउंड में खाना खाएगा वो, तो हो सकता है कि उसमें खाने में उसमें प्लास्टिक आ जाए, तो उसमें पेट में जगह उसकी कम रह जाएगी दूसरा खाने खाने के लिए, और वैसे ही वो मर सकता है। ड्यूरिंग द माइग्रेशन जब वो, अगर वो अपना सी पे लैंड करता है खाने के लिए कुछ, तो वहां पे अगर ऑयल पॉल्यूशन होगा तो वैसे भी उसको अफेक्ट होगा। तो दीज आर द थ्रेट ड्यूरिंग द माइग्रेशन।
देन अनदर थ्रेट इज अमूर फाल्कन। आपको पता है कि पोचिंग, अमूर फाल्कन का तो आपने सबने सुना है कि पोचिंग कैसे होता है वहां पे, और बिकॉज ऑफ द पोचिंग it was very harmful to that particular population of Amur falcon. Then the climate change. So आप सोचेंगे कि क्लाइमेट चेंज में तो क्या होता है, अगर गर्मी होती है तो बर्ड थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे आप देखते हो यहाँ पे कि एक वेबलर का स्पीसीज है, उसमें ये जो आप देखते हो पहले रिक्स वन में समर रेंज लॉस में, उसमें जो सॉलिड लाइन है वो उसका फ्यूचर का लाइन है, और ये जो डॉटेड है वो उसका करंट है। तो आप देख सकते हो कि उसका फॉरेजिंग एरिया कितना कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज द ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट द आइस एंड द विंटर, और जो अपना जो प्रॉपर टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो कम हो गया, उसका रेंजेस कम हो गया। पहले 10 किलोमीटर में था, अभी वो 5 किलोमीटर में आ गया। तो पहले वो 10 किलोमीटर तक घूम के खाना खा सकता था, अभी वो 5 किलोमीटर घूम के खाना खा सकता है। फिर दूसरा है कि जो होम रेंज है, उसके जो विंटर रेंज है, ये समर रेंज में भी प्रॉब्लम हो और विंटर रेंज भी उसकी कम हो जाएगी। तो जब कम होगी, अगर ये दोनों उसके दो ये है अपना रेंजेस, ये विंटर ये उसकी समर रेंज है, ये उसकी विंटर रेंज है, तो उसका डिस्टेंस उसको पता है कि 100 किलोमीटर है बीच में। अभी ये दोनों कम हो जाएंगे, तो 100 किलोमीटर यहाँ से भी 50 किलोमीटर बढ़ जाएगा, यहाँ से भी 50 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो होगा 200 किलोमीटर। तो उसका साइज इज बिल्ड फॉर 100 किलोमीटर, डूइंग माइग्रेशन फॉर 100 किलोमीटर। अगर 200 किलोमीटर एक और 100 ऐड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा माइग्रेशन में। यानी क्लाइमेट चेंज भी इसको अफेक्ट करता है माइग्रेशन में, वैसा करके। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमको रिसर्च करना चाहिए। जैसे हमारे जो बीएनएचएस के साइंटिस्ट है, या रमेश कुमार सर है जो डब्ल्यूआई के है, वो लोग वो ये पीपीटी के माध्यम से वो रिसर्च करते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं बर्ड। फिर एक रामसर कन्वेंशन है जो हैबिटेट को, जैसे नल सरोवर को भी रामसर का स्टेटस मिला है, तो वो डेजिग्नेट करता है कि ये साइट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड, और उसको कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी सेंचुरी घोषित करती है। तो ये भी ये हमारा कंजर्वेशन ही है। किसी एरिया को हमने कंजर्व करना है तो उसको प्रोटेक्शन देना हमारा कंजर्वेशन है। मगर हमको पता कैसे चलेगा कि हमको ये एरिया कंजर्व करना है? फ्रॉम द रिसर्च। तो रिसर्च एंड कंजर्वेशन आर गोइंग बोथ वे। देन अवेयरनेस। अवेयरनेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज माइग्रेशन और क्यों इसको माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे? आप वो वेटलैंड को ऐसे ही जाने दोगे? अगर आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज वेटलैंड, व्हाट इज द रोल ऑफ वेटलैंड, व्हाट इज द विंटरिंग ग्राउंड, व्हाट इज समरिंग ग्राउंड, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप वेटलैंड को अच्छा है वेटलैंड है चलो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वैसा हो जाएगी। यानी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपने ये सुना ही होगा, सुरेश सर ने बताया होगा, तो कि जब अमूर फाल्कन माइग्रेशन चालू करता है अमूर एरिया से, साइबेरिया से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे लोकस्ट, जैसे तीड़ जो बोलते हैं हिंदी में, वो आपको लगेगा ये सब तीड़ उड़ रहे हैं। ये तीड़ नहीं है, ये दिस ऑल आर द अमूर फाल्कन। हजारों की संख्या में अमूर फाल्कन आते थे यहाँ पे नागालैंड में। फिर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ वन डैम द पोचिंग इज गॉट इंक्रीज। और फिर आप देखो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आप स्काई कम देख सकते हो, अमूर फाल्कन ज्यादा देख सकते हो। यहाँ पे अमूर फाल्कन ज्यादा देख सकते हो, स्काई कम देख सकते हो। तो उसके लिए फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठा काम करना चालू किया। किसी ने एजुकेशन पे काम करना चालू किया, किसी ने रिसर्च पे काम करना चालू किया, किसी ने कम्युनिटी के साथ काम करना चालू किया। और वो अवेयरनेस, रिसर्च, कम्युनिटी अवेयरनेस सब इकट्ठा मिला के नाउ वी आर श्योर दैट अमूर फाल्कन ऑन द वे टू फाइट बैक। अभी अमूर फाल्कन कंजर्व होना चालू हो गए, यानी ये अवेयरनेस के थ्रू ही ये सब पॉसिबल हुआ। देन देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कोलैबोरेशन है, जैसे सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। अभी हाल ही में फरवरी में गांधीनगर में सीओपी कॉप 13 भरा गया, जिसका मेन उद्देश्य माइग्रेशन ही था। तो ये सब कन्वेंशन भी चालू होते हैं कि जिसमें सीएमएस में 130 पार्टीज है। तो वहां पे जो रिजोल्यूशन पास हुए कि भाई हमको ये करना है, हमको ये करना है, तो वो लोग फिर सब ये अपने अपने कंट्रीज में करेंगे। ताकि क्या होगा कि जो इंडिया वाला कंजर्वेशन कर रहा है वही श्रीलंका वाला करेगा, तो ही कंजर्वेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। श्रीलंका वाला ऐसा करेगा और इंडिया वाला ऐसा करेगा तो कंजर्वेशन नहीं रहेगा। यानी ये सब जो सीएमएस है उसको, दिस इज अ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द पार्टीज आर कम टुगेदर
दे ऑल डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दे कम अप विद द रिजोल्यूशन कि अच्छा ये हमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ। तो ये हमारे इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कोलैबोरेशन से माइग्रेशन को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। देन व्हाट यू कैन डू फॉर माइग्रेशन, आप माइग्रेशन के लिए क्या कर सकते हो। आप बोलते हो कि भाई हम मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ पे माइग्रेशन बर्ड आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो आप भी बहुत बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आप जो पेस्टिसाइड है, जो आप अगर खेत में काम करते हो, या आप जो जहाँ से फार्मर से आपका वेजिटेबल बाई करते हो, उनको बोलो कि आप पेस्टिसाइड का यूज मत करो। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, बायो पेस्टिसाइड्स भी नहीं मैं बोल सकता हूँ, मगर पेस्टिसाइड्स का यूज मत करो, वैसा आप बोल सकते हो। देन आप कार्बन को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हो, आपके कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करो। जैसे आप कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करोगे, आप इलेक्ट्रिक भी कम यूज करोगे और कम पवन चक्की या विंड मिल की जरूरत पड़ेगी। फिर ऑर्गेनिक फूड बाय करो एंड बर्ड कंजर्वेशन ग्रुप में ज्वाइन करो। अभी तो हर एक अपने गुजरात में तो हर एक सिटी में एक बर्ड कंजर्वेशन ग्रुप है, विच इज वेरी गुड कि हमारे गुजरात के जो सिटीजन है, दे आर वेरी मच अवेयर टू द बर्ड कंजर्वेशन। तो आप उनको ज्वाइन करो, उनके पास आप वीकेंड में एक दिन जाओ, पूछो कि क्या काम करना है, कैसे हम काम कर सकते हैं। और एक मेन थिंग है, डू नॉट डिस्टर्ब। मैंने कई बार देखा है, जैसे कोई बर्ड आता है, कोई एक नॉवल्टी बर्ड आ गया कि बेचारा बुरा भटका यहाँ पे आ गया एक जगह पे, तो मैंने जो देखा है फोटोग्राफर्स वो सब लेके उस पे इतने कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो बर्ड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप मत करो। एक फोटोग्राफी और ऑब्जर्वेशन में एक अपनी सीमा होती है, वो उसको हम ऑब्जर्व करो और डिस्टर्ब मत करो बर्ड्स को। यानी ये सब हम कर सकते हैं, बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन, not scientist but normal citizen, we can do lot of things, far lot of than the scientist. So this was my presentation. Thank you very much for listening to me. Now if any question, then let me know. Papa, ready? I got hot. ચાલે છે Banana bhaki. વાંધો નહીં, બહુ ચાલે છે. Hello Rishi. Okay, if somebody. Okay, so if they storm hit them, then definitely they will derail from that path. मगर जब storm खत्म होगा तब, because of they have the sense of magnetic field and they have a lot of other keen senses, they will again join the track back. क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि यही एक ही सीधी लाइन में फ्लाई करते हैं। फ्लाईवे कैन बी लाइक 200-300 किलोमीटर वाइड, तो कहीं पे भी वो उड़ सकते हैं। तो स्टॉर्म अगर हिट करता है तो अभी वो अपने, जब स्टॉर्म खत्म होगा तब वो अपने जो सेंसिस है उसका यूज करके वापस अपने लाइन पे आ जाए। Okay, bird feeding is not good, not especially the pigeon and everything, because क्या होता है कि जब pigeon को आप दाना डालते हो, तो वो जैसे ही आप उसको एनर्जी मिलेगी इन फॉर्म ऑफ द दाना, यानी जो उसका जो आप डालते हो चावल का दाना है जो भी, उसमें जो एनर्जी मिलेगी वो पूरी एनर्जी अपना यूज करेगा ब्रीडिंग में। और वो ब्रीडिंग का इतना फ्यूरियसली वो ब्रीडिंग करता है कि जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जैसे स्पैरो होते हैं या दूसरे दूसरे बर्ड्स होते हैं जो छोटे, इतने फ्यूरियसली ब्रीडिंग नहीं कर सकते, उसके भी नेस्टिंग साइट को वो खत्म करके अपना ही पूरा पॉपुलेशन बढ़ा देगा। और दूसरा, अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स के कोई भी 10 पिजन का आप सर्वे करना, हर एक पिजन में आप देखना क्या क्या कुछ डिसफॉर्मेलिटीज है कि नहीं है, तो आपको हर एक में कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा। किसी का कोई पाँव टेढ़ा है, किसी का आंख थोड़ा नहीं अच्छा है, बिकॉज दे आर लिविंग इन वेरी क्राउडेड प्लेस। व्हाई दे आर लिविंग इन क्राउडेड प्लेस? क्योंकि वहां पे आपको पॉपुलेशन बूम मिलेगा। और उससे क्या होता है कि अगर पिजन आपके घर पे बैठा है, वो ड्रॉपिंग करेगा, एसिडिक होगा, तो उसका पूरा ड्रॉपिंग भी आपके जो इमारत है या आपकी जो इंस्टॉलेशन है उसको भी प्रॉब्लम करेगा। यानी इट्स नॉट गुड फॉर फीड द
pigeon and everything. Yes, in earlier days what happened कि हम लोग जब मड हाउस में रहते थे गांव में, तब हमारे गांव में हर रोज कचरा हमारा घर से निकलता था और हम लोग घर पे ही सब जो राइस है या गेहूं है उसको हम लोग छानते थे, तो उसमें जब कीड़े मकोड़े निकलते थे वो हम हर रोज बाहर निकाल देते थे और वही वो खाते थे, उनका एक रिसोर्सेज थोड़ा था। अभी हमने क्या किया है कि हम उसको देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, और उनको वो बर्ड है, वो एनिमल है, कोई भी एनिमल को अगर आप देते जाओ तो वो तो खाना खाएगा, क्योंकि उनको पता है कि खाना आज मिला है कल नहीं मिलेगा मुझे। यानी इट्स गुड कि हम नहीं दे उसको, फिर वो अपने अपने इंडिविजुअल पे है कि देना है कि नहीं देना है, मगर नहीं दे तो अच्छा है। Well, Rushibhai, pelican, I don't know much about the particular pelican migration route or migration behavior. हाँ, अगर विंटर में आपको आते हैं वहां पे ब्लू लॉक थ्रस्ट, तो माइग्रेशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन होता है ब्लैक ड्राई स्टार का, वैसे ये भी आते हैं वहाँ यहाँ गुजरात में बाहर से। तो इट्स नॉट अबाउट के आपको 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर का कवर करना ही पड़ेगा तभी आप माइग्रेटन कहलाए जाओ। यू कैन बी माइग्रेट लाइक 300 किलोमीटर भी माइग्रेशन ही होता है। एक हमने देखा है कि एक कौवा किसी ने टैग किया था, वो यहाँ से अपने गुजरात से बॉम्बे तक चला गया। इट्स ऑल्सो माइग्रेशन। Yes, we have the research. We don't have research station as such. There are two scientists based in Gujarat. One is Dr. Dishan Parasharia, who is the in charge of the Gujarat field station, and one of me. So we are currently work from home. We have a couple of projects in Gulf of Kutch and couple of project in Panchmal area. So we are doing our project-based work from home and from field. We don't have such station in Gujarat right now. That તો ધવલ વરગિયા સાહેબ આનો આન્સર સારી રીતે આપી શકશે પોરબંદરની સાઈડ ગોસાબરાનો। बट व्हेन आई वेंट इट वाज हैव सम प्रॉब्लम कि मैं जब गया था कुछ ईआई करने के लिए, तब किसी ने बोला था कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है गसाबारा वेटलैंड में, मगर धवल भाई આનો સારી રીતે જવાબ આપી શકશે। जैसे मैंने आपको बताया है जो एक बर्ड है जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ अभी। कहाँ गया? जैसे ये फास्टेस्ट माइग्रेंट है ग्रेट स्नाइप, वो 60 माइल्स पर आवर्स पे वो माइग्रेट कर सकता है। वेल देर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है कुछ जैसे कि आपको ये ही रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, मगर यस देर इज द स्टडी, यू हैव टू डू द स्टडी ऑफ लाइक ईआईएम ही आपको स्टडी करना पड़ेगा, और कि कहाँ से आपके जो फ्यूचर या आपकी जो प्रपोज माइग्रेशन आपकी विंड मिल साइट है वहाँ पे कोई माइग्रेशन रूट आता है कि नहीं आता है। तो ये आपको स्टडी कंडक्ट करो तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो क्या है कि इन पास्ट देयर वर लॉट ऑफ रिंगिंग बर्ड आर वी आर डूइंग द रिंगिंग, बट राइट नाउ वी आर मोर डूइंग द टैगिंग, जो जीपीएस टैगिंग है जिससे हमको प्रॉपर पता चलता है कि यहाँ से ही बर्ड यही रूट से जाता है, तो उसके डेटा अवेलेबल है। तो आप जब ईआई करो तो आपको वो ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे कैसे कोई पाथ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसा करके आप कर सकते हो। वैसा हालांकि वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो करना ही करना है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू पुट इन दैट पेपर के नहीं ये होना चाहिए मैंडेटरी, मगर अभी तो ऐसा कुछ मेरे ध्यान में तो नहीं है कि मैंडेटरी है, मगर ये अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सर विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। ओके कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, so we'll end up here. ओके।
yes, they affecting the migration little bit, but study इतना हुआ नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता लग सके कैसे वो उसको अफेक्ट करते हैं, उसका रूट चेंज करते हैं या फिर उसके स्पीडिंग को कम करते हैं या उसको दूसरा कुछ प्रॉब्लम करते हैं। बट यस, इट माइट बी अफेक्ट बिकॉज इस द मैग्नेटिक जो उसके जो फील्ड है उसमें वो मोबाइल टावर्स और मोबाइल कम्युनिकेशन उसको डिटर करते ही है, दैट फॉर श्योर। मगर अभी इतना स्टडी नहीं हुआ है कि कैसे डिटर करते हैं। अगर आप गांठिया खिलाते हो लाखों में, हमने बहुत बार देखा है, तो उसमें सेम ही प्रॉब्लम होता है कि बिकॉज इस जो उसका जो इंग्रेडिएंट होता है चनानो लोट, जो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, એ એના बर्ड्स आर नॉट, स्टमक उसका है जो वो गांठिया के लिए नहीं बना है, उसका स्टमक बना है मच्छी के लिए या ग्रेन के लिए। तो अगर गांठिया आप खिलाते जाओगे तो उसके स्टमक में वो प्रॉब्लम शुरू कर ही देगा, and it will may rise some another problems like उसको भी, बर्ड्स को भी डायबिटीज होता है, बर्ड्स को भी ये अपना क्या वो थायराइड होता है, सब कुछ होता है, तो वो भी हो सकता है उसमें। मगर वी कान उसको हर एक बर्ड को हम पकड़ के देख तो नहीं सकते कि उसको अंदर क्या प्रॉब्लम है, मगर यस, इट्स डेफिनेटली विल चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ बर्ड इन लॉन्गर रन। एंड दूसरा उसका हैबिट भी वो हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो उसका हैबिट है फूड को नेचुरली कंजर्व करना और जो भी उसका जो प्रे स्पीसीज है उसके स्पीसीज की उसको कंट्रोल करना, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको इजीली फूड मिल रहा है, क्योंकि मैं फिश के पीछे भागू तो फिश बढ़ेगी उसके दूसरे कुछ रिपरकशन होंगे, तो वो भी हो सकता है एनवायरमेंटली। ग्रीन सी टर्टल का जो माइग्रेशन है, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि जो उसका हैबिटेट है वो कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, या फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ शिप ट्रैफिकिंग इन द पर्टिकुलर एरिया, दे माइट बी अबंडन द एरिया, क्योंकि भावनगर जो गल्फ ऑफ खंभात में है, जो अपना पूरा गल्फ ऑफ खंभात है, वो बहुत डायनेमिक कोस्ट है। तो अगर क्योंकि मैंने पीएचडी भी वहां पे किया अपने गांधर एरिया में, तो हमको पता है कि आज अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा पूरा प्लेन मड फ्लैट देखने को मिलेगा, दूसरे दिन जाओ तो पूरा वहां से कट गया होगा। तो मे बी पॉसिबल के बिकॉज ऑफ द चेंज इन हैबिटेट और इंक्रीज ऑफ सी ट्रैफिक, शिप ट्रैफिकिंग, ये ग्रीन सी टर्टल ने आना कम कर दिया। हाँ, फ्लेमिंगो हमारे लोकल माइग्रेट करता है, जैसे थोड़ा पॉपुलेशन जो है वो अपना कच्छ में रह जाता है और थोड़ा पॉपुलेशन फ्लाई भी करता है वहां से सऊदी अरबिया में, तो वो माइग्रेशन हो सकता है थोड़ा सा। माइग्रेशन रिलेटेड कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें सर तो कर सकते हो। एक्सपीरियंस माइग्रेशन में, हाँ, जब रिंगिंग करते हो तो पूरी रात बैठना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको शाम को आपको नेट फिक्स करनी रहती है और पूरी रात में आपके पास बर्ड्स आते रहते हैं जैसे ही वो रिंग में जो नेट में आए। और बिलीव मी, आपको दूर से कैमरा से या बाइनोक्यूलर से पता चलेगा कि ये स्पीसीज का वेडर है और ये स्पीसीज का वेडर है। जैसे ही आप उसको हाथ में पकड़ते हो, आप उसको पहचानने में गलती खाने ही वाले हो। तो नजदीक आता है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता आपको कि एग्जैक्टली ये कौन सी स्पीसीज का है। तो काफी बार वी हैव टू टेक फोटोग्राफ एंड वी हैव टू सेंड टू द एक्सपर्ट ऑन एंड ऑन कि अभी ये कौन सी स्पीसीज का वो है, क्योंकि उसके स्पीसीज पे उसकी रिंग डिपेंड करती है कौन सी जाएगी रिंग। तो दूर से पता चलता है, और रात को तो टॉर्च में आपको ऑब्जर्व करना एंड इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट। तो वो एक्सपीरियंस हमको हो चुका है वो। डिहाइड्रेशन इज इंक्रीजिंग का एक रीजन हो सकता है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके वजह से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसके वजह से जो फ्रेश वाटर के जो पॉइंट्स है इन द माइग्रेशन रूट वो कम होते जाते हैं। तो वो एक जैसे पहले बर्ड्स को पता था कि यहाँ पे इतना दूर जाऊंगा तो मुझे पानी का पॉइंट मिलेगा, यहाँ जाऊंगा तो मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा।
मगर बिकॉज ऑफ द हैबिटाट चेंजिंग, जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट का हॉट हो रहा है, तो उसमें वो अपने जो रिहाइड्रेशन पॉइंट होते हैं उसके वो थोड़े लॉस हो जाते हैं उसमें। तो वैसे भी हो सकता है कि उसको पानी नहीं मिले तो इट विल बिकम अ डिहाइड्रेशन। और ज्यादातर वो तो क्या करता है बेसिकली, तो जो उसके जो बॉडी का जो लिक्विड का प्रोसेस होता है, जो लिपिड का, फैट का जो बर्निंग होता है, उससे ही वो पानी ले लेते हैं। मगर अगर फैट भी कम हो जाएगा, धूप भी ज्यादा लगेगी उसको, क्लाइमेट का कंडीशन की वजह से वार्म वार्म वेदर हो जाएगा, तो यस उसका जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो उसका बॉडी पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये हैव टू गेट ओवर समवेयर वेयर वो ड्रिंक कर सकता है पानी को। अगर वो नहीं मिला तो वो हो सकता है कि डिहाइड्रेट हो जाए। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सर वील एंड अप हियर। थैंक यू सो मच ओके, फॉर टेकिंग थैंक यू, दिस सेशन and joining us. थैंक यू ऋषि भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया हो, नेचर क्लब सूरत को एग्जिस्टिंग विद पाइथन एंड वाइल्ड लाइफ एंड नेचर वेलफेयर ट्रस्ट, तो पेज को लाइक करें। हम हर रोज उस पेज पे नेक्स्ट वीक की इवेंट की अपडेट रखते हैं, तो आप उस पेज को लाइक करेंगे तो आप नेक्स्ट वीक की इवेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप सबको और एक रिक्वेस्ट है कि वही इवेंट जो होती है, हम जो अपडेट करते हैं उसको आप हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेबिनार में ज्वाइन हो सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस।